Welcome students. Today in this session we are gathered for a very interesting and important topic, aldol condensation. What is this aldol condensation? Just here it is. The meaning of condensation is this term is used for the union of two or more molecules of same or different compound to form a new substance with or without elimination of smaller molecules like H2O, HCl, NH3, C2H5 etc. कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है बेटा? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सेम हो या डिफरेंट हो आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, then that reaction is called condensation. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हर रिएक्शन में निकले. हो सकता हो ये मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो किसी रिएक्शन में और किसी रिएक्शन में इनका एलिमिनेशन ना हो. तो कंडेंसेशन का मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ small substances same or different to form a new substance with or without elimination. Now some facts related aldol condensation. Facts क्या है बेटा? इनमें सबसे पहले जो भी अल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड which undergoes aldol condensation they must have at least one अल्फ़ा हाइड्रोजन. उनमें कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए. इन माई अर्लियर वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अल्फ़ा एंड बीटा हाइड्रोजन, दीज ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड. यू कैन गो एंड second is whenever alpha hydrogen aldehydic or ketonic compounds undergoes aldol condensation they always forms बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन. अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड बनेगा और कीटोन होगा तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा. ये जो कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी दिस इज़ अनस्टेबल. क्योंकि ये अनस्टेबल होता है इसीलिए तुरंत इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है. और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? when this compound beta hydroxyaldehyde or ketone is heated in presence of dilute HCl, H2O is released. और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं H2O मॉलिक्यूल के निकलने से दिस बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड कोई सा भी अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा तो कीटोनिक कंपाउंड होगा. हमको यहाँ पर ये याद रखना है दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज अनस्टेबल एंड दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन. व्हाट इज दिस? जब सेम अल्डिहाइडिक कंपाउंड जैसे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम एसिटल्डिहाइड से ही करवा रहे हैं उस समय जो कंडेंसेशन होगा दैट इज एल्डोल. एसीटोन है तो एसीटोन से ही रिएक्शन करवाएंगे तब एल्डोल कंडेंसेशन होगा. यदि हम एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोन से करवाते हैं इस सूरत में देखिए बिकॉज दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड टुगेदर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑब्जर्व्ड. हमको यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स बहुत याद रखने हैं. अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी इन अनसैचुरेटेड देयरफॉर इट कन्वर्ट्स into unsaturated compound by dehydration. Third, same compounds shows aldol condensation, same aldehydic or ketonic compound shows aldol, whereas different compounds when react with each other they forms crossed aldol condensation. Now let's understand this with one example. The example is I am taking acetaldehyde C
H3C double bond O. This is our aldehyde group. When this reacts with another acetaldehyde, I am writing this CH3 like in this form. When it reacts with dilute NaOH, it gives beta hydroxy compound. Beta hydroxy means this is our beta hydroxy compound. Because it is unstable, therefore it undergoes dehydration with dilute HCl. Dilute HCl, when it is heated, it gives us an unsaturated compound. How it will give us? This we will came to know by the mechanism. See, this is beta position. This is our aldehyde. This is alpha, and this is beta. This is beta hydroxy. Beta hydroxyaldehyde. Beta hydroxy aldehyde. अब यदि हम इसका IUPAC नेम दें, व्हाट इट विल बी? 1 2 3 4 BUT single bond AN CHO AL and 1 2 3 hydroxy butanol, and this is unstable. Therefore it undergoes dehydration to form an stable compound. अब ये कैसा देखिए, it gives an unsaturated carbonyl compound. जो हम कंपाउंड लेंगे वही फंक्शनल अल्डिहाइड लेंगे तो अल्डिहाइड ही हमको मिलेगा. ये क्या है हमारा? 1 2 3 4. अगेन इट इज़ अवर BUT डबल बॉन्ड. This ene is at 2 and AN. This is our stable compound. Now let's go for mechanism. This is our first step of mechanism. In this step, alpha hydrogen is removed for the formation of carbanion. अब ये कैसे होगा? Now see, we are taking this molecule. This molecule we are taking here. When this one molecule of acetaldehyde reacts with this NaOH, क्या होगा यहाँ पर? NaOH, and this is NaOH is dilute. यहाँ पर क्या होगा? Because this OH minus NaOH का काम यहाँ पे क्या है? OH देना. What happens here? ये OH एसिडिक हाइड्रोजन को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ है? ये है एसिडिक हाइड्रोजन. जैसे ही ये H प्लस बनेगा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस कार्बन, और क्या होगा? दिस OH will attack on this and forms H2O. Because this hydrogen is H plus, so these 2 electrons of this bond will move towards this carbon, और क्या बनाएंगे? They will form an carbanion. देखिए बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस C की तरफ आ गए हैं, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच बन गया. CH1 and 2, CH2, and this is our H. This is one carbanion, and carbanion is what? This is a electron rich. इसको हम एक न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं.
ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी ऑलवेज इन सर्च ऑफ सच कंपाउंड वेयर इट कैन सर्च अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना। तो ये किस पे अटैक करेगा? अब ये अटैक करेगा, अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा दैट इज द now second step what will happen, this carbon ion will go and attack on other acetaldehyde. अब कैसे होगा देखिए, this now this one I am writing second molecule, I am writing in second step. now see here, इस कार्बोनाइल ग्रुप में हम जानते हैं दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर, दिस ऑक्सीजन इज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इस कारण से कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस सी। अब ये कैसे अटैक करेगा? नाउ सी हियर, प्लस दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक CH2C। अब ये अटैक करके क्या बना लेगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा एंड दिस कंपाउंड विल बी CH3C, दिस इज O माइनस, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, this becomes O minus H, this CH2 attacks on this, तो CH2C डबल बॉन्ड O and H, ये हमको मिला है कोई सा हमारा एक एडिशन कंपाउंड, दैट इज अवर अल्कोक्साइड आयन। नाउ सी, अल्कोक्साइड आयन मिला, अब हमको क्या करना है? इस माइनस चार्ज को हमको ख़त्म करना। नाउ हाउ टू फिनिश दिस? नाउ व्हाट हैपन्स, वी विल गिव एयर प्रोटोन, सो अवर थर्ड स्टेप विल बी प्रोटोनेशन ऑफ दिस अल्कोक्साइड आयन। नाउ सी व्हाट हैपन्स, आई एम राइटिंग दिस अल्कोक्साइड आयन हेयर, CH3CO minus H CH2C. Now see, already I have told that here we have taken dilute NaOH, हमने dilute लिया है, this means H2O we are having here, और H2 हमको कहाँ से मिला है? Now what happens, we are having H2O, this H plus will go and attack on this H plus will go and attack on this O minus, और ये क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल। सी एवरीथिंग इज सेम। Now see, this becomes our aldehyde, alpha, beta. What I told, हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या मिला है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, हमको यह कंपाउंड मिला है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यदि हम यहाँ कीटोन लेते तो हमको यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता। अब नाउ व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि आपको बताया था दैट दिस हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी इज़ एन अनस्टेबल, एज दिस इज़ अनस्टेबल, तो क्या होगा, ये अपने में से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ stable compound. Now our last step and the fourth step will be dehydration. Now see here, I am writing this unstable compound here, CH3, then this
COH H, देन इस CH2 को हम दोनों हाइड्रोजन को एक ऊपर एक नीचे लिख देते हैं, H H, देन C double bond O and H. What will happen? Because this is unstable compound, it will, जैसे ही ये बनेगा ये तुरंत अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन स्टेबल कंपाउंड. कैसे होगा? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl व्हेन इट इज़ हीटेड इट विल रिमूव वन H2O मॉलिक्यूल. और कौन सा H2O मॉलिक्यूल निकालेगा? C, दिस वन, अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड. ये दोनों मिलके एलिमिनेट हो जाएंगे और बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड. आई एम राइटिंग लाइक दिस. सी, ये दोनों एलिमिनेट हो गए. दिस बिकम्स अवर डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O and H. This is our unsaturated aldehyde. अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. और ये कंपाउंड हमारा कैसा है? अनस्टेबल. नाउ सी व्हाट वी हैव. पहला हमारा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड में हमने बनाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हमको मिला अल्कोक्साइड आयन. फिर इस अल्कोक्साइड आयन का हमने प्रोटोनेशन किया, हमको मिला बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड था. इस अनस्टेबल कंपाउंड का डिहाइड्रेशन हुआ डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब हमने हीट किया. दिस कंपाउंड्स कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ स्टेबल कंपाउंड दैट इज एन unsaturated aldehyde. I hope you have understood it well. In our next video we will be meeting soon with crossed aldol condensation as well as tricks. Thank you for watching it.